We have started with this chapter. I was telling you the definition of data and data की definition में बता रही थी. It is the collection of facts or figures, collection of facts or figures for some purpose. Collection of facts or figures for some purpose. I explained it earlier that what is the meaning of collection of facts and figures. That means you are collecting some facts and some figure for some purpose, for some, you can say, task, right? So this is the definition of data. So we were doing that. What is the meaning of handling the data? Meaning of handling the data, that there are so many ways with the help of which we handle the data. For example, by representing the data with some graphs. Representing the data with some graphs, right? For example, in the previous classes you have done pictograph. Pictograph, you did it in the previous classes. What is pictograph? Pictograph is the pictorial representation of the data. That means in which, with the help of pictures, you represent with the help of certain symbols, you represent the data. In which we represent the data, in which we represent the data with help of some pictures. Pictures की help से जब हम data को represent करते हैं, that is called pictorial representation of the data, right? Then we have done the second one, that is bar graph. What is bar graph? Bar graph is again the graphical representation of data in which we represent the data with help of bars of uniform width. In which we represent the data with help of bars of uniform width. So what is the meaning of the uniform width and what is bar graph? Let me tell you. In the previous classes, you have done the bar graph. 7th standard में आपको bar graph था. क्या करते थे हम? We represent the data like this on the bars with the help of bars. These are the bars. They are at the equal distance. उनके बीच में distance भी same होता था. And moreover, bars की अपनी width भी जो होती है वो same होती है. Distance between the bars, it is the same, and moreover width of bar itself, it should be the same. So that was the bar graph. You did it earlier, in which bars are the formation of the data. Then histogram. In which there is no gap. In which there is no gap between the bars. For example, one bar, it is adjoined to the another, third, fourth, fifth and so on. एक बार दूसरे के साथ adjoined होता है. This is something new that you will learn in 8th standard, right? So these are the three representation, graphical representation. You have done it earlier also in the previous classes, on the basis of which we will do some of the try these. Page number 71. Page number 71. Question number first. Draw the appropriate graph of the given data.
Draw the appropriate graph of the given data. What is the data given to us? We are given month and then number of watches sold. Number of watches sold. Month is July, then August, then September, October, November, and then December. These are the different months, and in the different months, the number of watches sold, the data is given about. This is 1000, and then this is 1500, again 1500, and again 2000, 2500, and then 1500. This is the data which is given to us, right? Now see what we will do. He says, draw a particular graph of this data. He doesn't told us that whether we should represent this data with the help of bar graph, with the help of pictograph, or with the help of histogram. We have to see ourselves that which graph we should make for the data. अपने पास graph रखना, साथ साथ जैसे जैसे मैं बोर्ड पे बनाऊंगी, you make it on your graphs. राइट अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करने लगे हैं डाटा की, तो कौन सी रिप्रेजेंटेशन करनी है ये हमें देखना है। सबसे पहले तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, जहां पे एक चीज मैथमेटिकल टर्म्स में दी हुई है और एक चीज किसी तरह की कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पे दीज आर द टाइप्स ऑफ मंथ्स, राइट, दीज आर द डिफरेंट मंथ्स नेम, तो ये एक कैटेगरी हो गई और ये हो गई मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन। When there is one category and another is mathematical information, then go with help of bar graph. तब आपने histogram नहीं बनाना, तब आप क्या बनाओगे? Then you will make a bar graph, right? चलिए, let us start. How to make bar graph of this data? You just draw the two axes, x-axis, y-axis. This is O. This is point O. राइट आपने O पॉइंट ड्रॉ कर लिया। वैसे x एक्सिस y एक्सिस हम इसको ना भी बोलें, सीधी लाइन भी बोल दें, क्योंकि हमने इसको लेना ही उस पे है अपने ग्राफ पेपर पे, तो अकॉर्डिंगली यू कैन सी, राइट। नाउ एक लाइन आपने इधर की तरफ बनाई x एक्सिस की तरफ, एक लाइन आपने y एक्सिस वाली साइड बनाई। नाउ these are two things, one should be represented horizontally, that means along x axis, another should be represented vertically, that is along y-axis. Now we have to think that which thing we should represent along x-axis and which thing we should represent on y-axis. वैसे तो ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है, but you remember that we will represent the categories on x-axis and mathematical information on y-axis. That means along x-axis I will represent months, जो मैं months दिए हुए हैं, that I will represent along x-axis. वो हम x-axis पे represent कर देंगे months. Months will be represented along x-axis. And what about this mathematical data? It will be along y-axis. तो आप इस पे y-axis की तरफ क्या लिखोगे? ये months हैं, ये क्या होएगा y-axis की तरफ? Number of watches, number of watches सोल्ड, ये आप लिखोगे वाई एक्सिस पे, जो आपकी वॉचेस सोल्ड हुई हैं, सेल हुई हैं, वो आप लिखोगे अलोंग वाई एक्सिस। अब आपने यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे नंबर्स लेने हैं, उनको कैसे लेना है, लेट मी टेल यू। आप यहाँ पे अगर 1000 का गैप लेते हो, क्योंकि नंबर आपका 1000 से स्टार्ट है, 1000 का गैप ले लो, दिस इज 1000, दिस इज 2000, दिस इज 3000 एंड दिस इज 4000, ठीक है। अब आपने यहाँ से स्टार्ट कैसे करना है, आपने क्या करना है, बार ग्राफ पे बना रहे हो, अब इसको 10 लाइंस काउंट करनी है। 10 लाइंस पे जो बोल्ड लाइन होती है उससे शुरू करना है जुलाई मंथ के लिए, एंड किस नंबर के साथ एसोसिएट करना है, 1000 के साथ। हाउ यू विल प्रोसीड, स्टार्टिंग विद दिस बोल्ड लाइन, गो टू 1000, कम बैक टू नेक्स्ट बोल्ड लाइन, मेकिंग द फर्स्ट बार, दिस इज फॉर द मंथ जुलाई एंड इट इज 1000। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बोल्ड लाइन, 10 लाइंस को हमने कवर करना है, 10 लाइंस को कवर करके हम वापस आगे, जुलाई मंथ हो गया। मैंने क्या बोला था, बार ग्राफ में बार्स के बीच में एक प्रॉपर गैप होता है, राइट। तो
तो आपने 10 लाइंस का प्रॉपर गैप छोड़ दिया। अब आ रहा है मंथ अगस्त का। अगस्त के मंथ में 1500 आपने डार्क लाइन से शुरू किया। 1000 के बाद एक लाइन काउंट करोगे 1100, दूसरी पे 1200, तीसरी पे 1300, चौथी पे 1400, फिफ्थ लाइन पे यू विल गेट 1500। यहाँ गए, जैसे बच्चे स्कूल में होते हैं ना, जाते हैं आगे टीचर मिल जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं कि हमें विश ना करना पड़े, वैसे हमने यहाँ पे यू टर्न लेनी है, वापिस आ जाना है बोर्ड लाइन के पास, 10 लाइनों के बाद काउंट करके ये बना 1500 एंड नीचे मंथ कौन सा है, अगस्त। राइट, नाउ यू लीव 1 बार अगेन, सितंबर मंथ 1500 सेम, 10 लाइनें छोड़ के फिर से 10 लाइनों को कवर करो। दिस इज द मंथ ऑफ सितंबर। Again leave the 10 lines, right, and the next month is October 2000। ऊपर गए, सीधा लाइन को 2000 के पास लेके गए, this is 2000, coming back covering the 10 lines, this is month of October and associated with 2000, again leaving the 10 lines, right, coming to November month, that is 2500, 2000 के बाद 5 lines count करी, so this will be 2500 and this is the month of November, right? Then December month it is 1500, going with the one bar छोड़ के 10 lines छोड़ के फिर से गए, it associated with 1500, going to 1500, coming back, this is the month of December. 2-3 things you will keep in mind. First, that the bars they should be of the uniform width, that means 10 लाइंस के गैप पे, और उनके बीच का गैप भी प्रॉपर होना चाहिए, कितनी लाइंस का, 10 लाइंस का, यानी कि बार ग्राफ पे जब आप इसको बनाओगे तो एक बार आप छोड़ के सेम विड्थ का दूसरा बार डिजाइन करोगे। दिस इज द वे टू ड्रॉ द बार ग्राफ। ओके, और इसका आपने स्केल भी लिखना होता है। स्केल कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 मंथ, एक ब्लॉक में 1 मंथ, एंड अलोंग वाई एक्सिस 1 ब्लॉक, एक ब्लॉक में 1000 यूनिट्स, या फिर कुछ बच्चे 1000 वॉचेस भी लिख देते हैं क्योंकि ये वॉचेस का डाटा है, एनीथिंग यू कैन राइट, 1000 units or 1000 watches, ठीक है, you have to write it like this। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन इज टू रिप्रेजेंट द डाटा। देखो अब जहां यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ वो कैसा है, children who prefer walking, and second is cycling. This is school A, school B, and then school C. This is 40, 45, 55, 25, 15 and then 35। ठीक है, तो यहाँ पे हमें खुद देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। देखो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम तो हम बना नहीं सकते क्योंकि जहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ नंबर्स हैं साथ में, वहाँ पे हमेशा बनना तो बार ग्राफ ही है, पर यहाँ पे दो चीजों की इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स वी हैव टू मेक द डबल बार ग्राफ एट ए टाइम, क्योंकि इंफॉर्मेशन 2 चीजों के बारे में है। देखना कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन, इधर वाली साइड पे आप लोग स्कूल्स, इधर वाली साइड पे आप लोग चिल्ड्रन हु प्रेफर, दैट मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे आपने स्कूल्स की टाइप लिख लेनी है, और इधर आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन में देखो 15 सबसे स्मॉलर है, 55 सबसे बड़ा है, आप 10 का गैप लेते हैं,
10 का गैप, 100 का गैप, 1000 का गैप हमेशा इजी होता है, हम यही लिया करेंगे। ठीक है, 10-10 का गैप ले लिया आपने, सभी में गैप सेम होना चाहिए, राइट। अब देखो जरा ध्यान से, दो दो चीजें एक साथ, वॉकिंग भी और साइकिलिंग भी। स्कूल ए के 40 बच्चे वॉकिंग एंड 45 बच्चे साइकिलिंग। तो आपने क्या करना है, एक बार आपने छोड़ दिया, ये मान लो आपका एक बार है 10 लाइंस का, ठीक है। आपने इसमें से हाफ बार के लिए वॉकिंग ले लेना है, 40 तक दे, हाफ बार बनाया 5 लाइनों पर, ये हो गया वॉकिंग के लिए 40 स्टूडेंट। एंड स्कूल ए के कितने स्टूडेंट साइकिलिंग के लिए, 45 स्टूडेंट। 5 लाइंस काउंट करो, 40 के बाद 5 लाइंस काउंट की, यहीं से स्टार्ट किया, दिस इज 45, दिस इज 40, दिस इज 45। वॉकिंग के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लो और साइकिलिंग के लिए टेक वर्टिकल लाइंस। एक बार छोड़ा, अगला एक बार आया, अगली 10 लाइंस आई, उसके लिए स्कूल बी लो 55 वॉकिंग, 55 आपको 60 भी लेना पड़ेगा, 55 यानी 50 के बाद 5 लाइंस, हाफ लाइन, 5 लाइनों के लिए हमने वॉकिंग को दे दिया एंड इट इज 55 एंड cycling is 25, going with the same line, go up to 25, come back to the same bar, and this is 25, this is for cycling. School C 15 is for walking, that means आप यहाँ से चले, 15 लाइंस आपने काउंट की, आधे बार तक आप वापस आ गए और ये आपका बना 15 for walking and 35 for cycling. अब यहीं से इसको उठाते हुए इसी बार के साथ 35 आप ले आए और आप 10 लाइंस पे वापस आ गए, यानी कि 5 लाइंस हमने वॉकिंग को दे दी, 5 लाइंस हमने किसको दे दी, साइकिलिंग को। अब इसका जब आपने यूनिट लिखने हैं ना, तो ऊपर आप लिखोगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज फॉर वॉकिंग और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं दिस इज फॉर साइकिलिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमने किस चीज के लिए क्या लिया। और मोर ओवर यहाँ पे 0 जरूर लिखना है और एक्स एक्सिस का यूनिट चाहे ना भी लिखो क्योंकि इसमें कैटेगरीज होती हैं। वाई एक्सिस का यूनिट अलोंग वाई एक्सिस 1 ब्लॉक इज इक्वल टू हाउ मेनी चिल्ड्रन, 10 यूनिट्स भी लिख सकते हो या 10 चिल्ड्रन भी लिख सकते हो, एक ही बात। इसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ, दिस इज नोन एज डबल बार ग्राफ। हाँ जी सोमिल। मैम मैंने पूछना था कि जो ये आपने लाइंस लगाई हैं बार्स के अंदर, इसकी जगह मैम हम एक बार में वॉकिंग और एक बार में साइकिलिंग भी लिख सकते हैं कि लाइंस ही लगानी है? हाँ, अगर आप लिख रहे हो फिर आपको यहाँ पे दिखाने की, डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे डिजाइन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो यहाँ पे डबल बार ग्राफ क्यों हमने बनाया, क्योंकि एक ही चीज के लिए एक स्कूल के लिए दो दो चीजों का डाटा दिया हुआ है। स्कूल के बच्चे कुछ वॉकिंग भी लाइक करते हैं, कुछ साइकिलिंग भी लाइक करते हैं। ऐसे केसेस में जहाँ पे कैटेगरी सेम चीज के लिए दो दो चीजों के लिए लाइकिंग शो की हो या कुछ डाटा शो किया हो, देयर आउट यू विल मेक डबल बार ग्राफ। हाउ टू मेक डबल बार ग्राफ, डिवाइडिंग 1 बार इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 5 लाइनें एक बार के लिए, वहीं से उठाते हुए एडजॉइनिंग सेम 5 लाइनें दूसरे बार के लिए। आई होप इट इज ओके विद यू। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ट्राई दिस का, दिस यू डू योरसेल्फ, ठीक है, ये अपने आप करना। परसेंटेज विन्स इन ओडीआई, आपके पास टीम्स के नेम दिए हुए हैं, दैट यू विल टेक अलोंग एक्स एक्सिस, और जो डाटा दिया हुआ है 10-10% का गैप लेके दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। तो एक है वर्ल्ड कप 06 की ट्रॉफी, उसको 5 ब्लॉक में ले लेना है और 10 to 07 लास्ट में उसको दूसरे 5 ब्लॉक में। डबल बार ग्राफ बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सो राइट। हाँ जी मनस्वी। मैम मुझे हिस्टोग्राम में डाउट है, मैं सुन नहीं पाया था जब आपने हिस्टोग्राम के बारे में बताया था। किया ही नहीं हमने हिस्टोग्राम, अभी मैं करवाऊंगी फिर बताऊंगी, हमने किया ही नहीं अभी। मैं आपने डेफिनेशन लिखी थी ना हिस्टोग्राम की, समझा दूंगी जब हम करेंगे उसको, ऐसे पता भी नहीं चलेगा। आप सिर्फ अभी बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ को देखो, ओके। चलो इसका थर्ड क्वेश्चन आप खुद करना, डबल बार ग्राफ बनाने वाला। चलो हियर आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग।